जी, very good evening to all the learners. सभी learners को नमस्ते and good evening. I hope मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही होगी. Am I audible, guys? Okay, perfect. So I welcome Bhavani, Diksha, Niharika, Sonali, and Sanjay sir. Also welcome to the class. So this is Net English December session, we can say, and winter session 2024. And I welcome you all to this session. And we know that, guys, we are going to have a very important, you can say, next few months ahead, because we are preparing for net English now, and it's a big task, but at the same time not impossible. And after having cracked net for many times, I think 11 or 12 times, and also achieving JRF, I can confidently say that if each of us will study the way I will, or the way I'm going to tell you, I think we are all going to get, you can say, the success in this field. And but a net as a paper requires a very deliberate and a very systematic structured approach. If you come for few days, and then you can say, you are not coming for few days, then in that way, we are not going to get the desired results, right? So for net class, it's important that we must have consistency, continuity, smartness, and also unyielding passion, you can say, to conquer this paper. And I can say that it's not very difficult based on my experience, but at the same time you require 100% conviction and self-belief and a correct guidance. Okay, so today we are going to start this session focusing on unit 5. Okay, we know, guys, that unit 5, in while preparing for net, we have got our English paper, we have got 10 units, and out of the 10 units there is this unit number 5, which is language. Okay, this is language, its history and evolution. So we are going to look at the different aspects of language and its different, you can say, approaches. So language, history, and its evolution, that is English language, we are going to look in detail. Okay, so all set, guys. So first of all, let us look what is language. Okay, and how we can define language as such. Okay, so we can say that first of all, let's quickly run through the definition of language. So what is language? Language is actually, it is actually a system of sounds, right? It is a system of sounds. Then words, patterns used by humans. It is a system of sounds, words, patterns used by humans to communicate their thoughts and feelings. To communicate their thoughts and feelings. Okay, so I hope it is clear that any language, any language is basically nothing but a system of sounds. So it is a system of sounds. So I can define language as basically as sound plus sign. Okay, this is just for our understanding. We will write any language is actually a combination of sound and sign. Okay, for sound we use the word phoneme, phoneme, and for sign we use the word, like there are different, you can say, words for sign, but for, you can say, we can use morphemes. Morphemes refer to minimum unit of meaning in a language. What is morpheme?
मिनिमम यूनिट ऑफ लैंग्वेज, सॉरी मिनिमम यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। ठीक है, मीनिंग की जो मिनिमम यूनिट होती है ना, मीनिंग की, उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फीम कहते हैं, मॉर्फीम्स। और साउंड की जो मिनिमम यूनिट होती है उसको हम फिनीम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे अगर मैं कहता हूं बैट, पैट, कैट, ठीक है, अब इन सब में अब मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, जैसे जैसे बैट में ए का साउंड, कैट में ए का साउंड, और पैट में ए का साउंड। तो ये जो है ना, जो साउंड्स आ रहे हैं, ये जो साउंड्स हैं, या फिर बैट में ब का साउंड, फिर ए का साउंड, और फिर ट का साउंड, तो ये तीन साउंड्स हो गए ना बैट वर्ड में। तो ये जो तीन साउंड्स है अलग अलग, ये क्या है? फिनीम 1, फिनीम 2 और फिनीम 3। तो फिनीम क्या है बेटा? मिनिमम यूनिट ऑफ साउंड अटरेंस इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड एज फिनीम। तो हम कहेंगे बैट वर्ड में तीन फिनीम्स हैं। आगे समझ में? तो साउंड के अकॉर्डिंग जब हम उसका सबसे छोटा यूनिट देखते हैं लैंग्वेज में, तो उसको हम फिनीम कहते हैं। ठीक है, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि सर फिनीम्स भी दो तरीके के होते होंगे। फिर फिनीम्स क्या क्या होंगे सर? कॉन्सोनेंट साउंड्स भी तो होती हैं। जैसे बैट में ब और ट का साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड्स है। और जैसे हमने कहा कि फिनीम में, सॉरी, बैट में ए का साउंड क्या है? वॉल साउंड से। ठीक है, तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं साउंड्स को भी, कॉन्सोनेंट साउंड्स और वॉल साउंड्स। यहाँ तक का क्लियर? एक बार सारे बच्चे बताएं। ठीक है, तो हाँ बताओ फिर तनुजा बोरा, बताओ, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, ए, अ, लिखा मैंने। तो ये फिनीम है कि वर्ड है? ये फिनीम है या फिर ये एक वर्ड में आएगा? फिनीम है कि वर्ड है? सभी बच्चे बताएं, तनुजा बोरा से पूछा है। हाँ, खाली अ लिखा है मैंने। काफी कम रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, क्या बात? फिनीम। देखो एक्चुअली इसका जो आंसर है, एक्चुअली अ जो है वो दोनों ही है, इट इज बोथ। ठीक है, अ एक फिनीम भी है क्योंकि वो एक सिंगल साउंड अटर कर रहा है, और अ हम कहते हैं आर्टिकल में, एक आर्टिकल ग्रामेटिकल फंक्शन के हिसाब से एक वर्ड भी है। सो अ इज बोथ। ठीक है, इंटरेस्टिंग था ना क्वेश्चन? ठीक है, तो कई बार हमें देखना पड़ता है कि वर्ड है कि फिनीम है, साउंड के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन है, तो फिनीम है सबसे मिनिमम। आप इस फिनीम को डिफाइन कैसे करोगे? मिनिमम यूनिट ऑफ साउंड, नोट कर रहे हैं सारे बच्चे? मिनिमम यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज फिनीम। क्लियर? तो यहां तक का क्लियर हो गया। अभी मॉर्फीम को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज ये बता रहा हूं कि मिनिमम यूनिट ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड एज मॉर्फीम। तो अभी मॉर्फीम पे मैं और डिटेल में आऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त एक डायग्राम बना रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपको किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो ये डायग्राम आप याद कर लेना। ठीक है, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इस डायग्राम से। मैं सीधा ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, तो देखो, अगर एक डायग्राम मैंने भेजा है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे, तो आप देखोगे कि इसमें जो सबसे इसका जो कोड है, एक लैंग्वेज के डिफरेंट लेयर्स हैं, ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ लैंग्वेज, इसको बनाते भी रहना मेरे साथ साथ। डिफरेंट लेयर्स ऑफ लैंग्वेज अगर हम बात करें, तो आप इसमें देखोगे कि बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है, पूरा लेक्चर आज इसी पे हमारा चलेगा।
तो इसको मैंने एक नाम दिया है पी एस स्क्वायर और एम पी स्क्वायर। पी एस स्क्वायर और एम पी स्क्वायर, ये एक्रोनिम लिख लो। तो पी एस स्क्वायर, तो अब सबसे बड़ा सर्कल बनाते हैं पी। तो पी आपका बहुत बड़ा सर्कल सा बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका बनेगा पी के बाद फिर आपका बनेगा, फिर एक छोटा 6 सर्कल्स बनाने हैं आपने। दूसरा सर्कल, फिर एक तीसरा सर्कल, ठीक है, फिर एक चौथा सर्कल, फिर एक पांचवा सर्कल और फिर एक छठा सर्कल। मजेदार, बहुत जबरदस्त नोट्स बन रहे हैं हमारे, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम डिफाइन करते हैं, जो सबसे बाहर वाला पी है वो क्या है, प्रैग्मेटिक्स। लैंग्वेज के डिफरेंट लेयर्स हैं, उसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो अंदर वाला है वो उसको कहेंगे हम सीमेंटिक्स। क्या कहेंगे, सीमेंटिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसके अंदर है वो क्या है, सिंटेक्स। सिंटेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर क्या है, एम से मॉर्फोलॉजी, ये वाला कोड यहाँ लिख रहा हूँ मैं, मॉर्फोलॉजी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है तुम्हारा, पी से फोनोलॉजी। पी से क्या है, फोनोलॉजी, ठीक है। और फिर तुम्हारा फिर एक लास्ट में जो पी आया उसका क्या है, सबसे जो छोटा है वो क्या है, फिनिम्स। फिनिम्स बन गया। मेरे साथ साथ बना रहे होंगे सारे बच्चे, ठीक है। तो ये है कि नहीं मजेदार। तो आप देखो इसमें क्या है, फिनिम्स आपका ब्लू कलर से हो गया, ये साउंड्स की स्टडी हो गई, ठीक है। उसके बाद जो फोनोलॉजी है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, फोनोलॉजी। हाँ, ये जो लास्ट में मैंने लिखा है ये फिनीम्स नहीं है, ये फिनेटिक्स है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको क्या लिखेंगे, फिनेटिक्स, ठीक है। तो फिनीम्स तो उसकी एक यूनिट का नाम है ना। तो आप देखेंगे कि जो फिनेटिक्स है उसमें हम क्या करते हैं, स्पीच साउंड्स की स्टडी करते हैं। फोनोलॉजी जो सबसे अंदर है, फिनेटिक्स इसमें स्पीच साउंड हो गया, ये नंबर 1 हो गया आपका, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 क्या है आपका, फोनोलॉजी। फोनोलॉजी यहाँ पर आ गया। फोनोलॉजी में हम क्या करते हैं, फिनीम्स की स्टडी करते हैं। फिनीम्स थोड़ा सा इससे बड़ी चीज है, स्पीच साउंड से बड़ी चीज है फिनीम्स। फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजी, तीसरे नंबर पे क्या आया, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हमने क्या लिखा है, मॉर्फोलॉजी में देखो वर्ड्स आगे ऐसे करके ड्रॉ करते रहना। चौथे नंबर पे क्या आया, सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या आता है, देखो वर्ड्स एंड फ्रेजेस। चौथे नंबर पे सिंटेक्स में क्या आया, वर्ड्स एंड फ्रेजेस आ गए, ठीक है कि नहीं, वर्ड्स एंड फ्रेजेस। और फिर हम कहते हैं ना कि वर्ड का सिंटेक्स होने चाहिए, वर्ड को मिला के सिंटेक्स बनता है। सिंटेक्स को सेंटेंस भी कह सकते हैं हम। जहाँ पर सिंटेक्स लिखा है वहां पर आप लिख दोगे सेंटेंस, सिंटेक्स को क्या लिख दोगे आप, सेंटेंस। सेंटेंस में याद रखना हमेशा सिंटेक्स ही होता है। व्हाट इज सिंटेक्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम कहते हैं सिंटेक्स के बाद सिमेंटिक्स आता है। सिमेंटिक्स क्या होता है, मीनिंग्स ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। सिमेंटिक्स क्या है, मीनिंग्स, मीनिंग्स में आ गया। पहले अरेंजमेंट देख रहे थे उनका, फिर मीनिंग्स ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंस। अभी वर्ड के मीनिंग पे नहीं चल रहे, अब फ्रेज में आ गए। फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस की मीनिंग को हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक्स। और लास्ट में प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स किसका मीनिंग होता है, मीनिंग इन कंटेक्स्ट, ठीक है। परिस्थिति जन्य आधारित उसका जो मीनिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, मीनिंग ऑफ कंटेक्स्ट। कोई भी जो हम कन्वर्सेशन करते हैं वो किसी कंटेक्स्ट में करते हैं ना। कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, सिचुएशन, बैकग्राउंड, ठीक है। हम कहते हैं कि अभी हम लोग क्या हैं, आप स्टूडेंट हैं, हम आपके टीचर हैं, तो ये कंटेक्स्ट है। जैसे अगर हम कहीं और मिलते हैं तो मे बी हमारा कंटेक्स्ट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन होता है। समझ में आया ये वाला डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी को डिटेल में हम करते रहेंगे फिर।
नोट कर रहे हैं सारे बच्चे? मैं आपको बता दिया था कि लैंग्वेज के जो मल्टीपल मीनिंग्स, लैंग्वेज इज एन एसोसिएशन ऑफ साइन एंड साउंड ना। तो मैं आप लोग को ये बता रहा था कि लैंग्वेज किसका एसोसिएशन है, साइन प्लस साउंड। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है वो क्या आया, साउंड आई। सबसे पहले साउंड आई, फिर उसके बाद हमने उसको कोडिफाई किया, साइन बनाया, ठीक है। तो हम जो भी साउंड्स होती हैं उनके जो अटरेंसेस होते हैं, इसको फर्डिनेंड डे ससूर, अगर हम नेट के लेवल पे पढ़ेंगे तो एक लिंग्विस्ट पढ़ोगे आप, एमए में आपने पढ़ा ही होगा फर्डिनेंड डे ससूर। तो फर्डिनेंड डे ससूर जो हैं ये लिंग्विस्ट हैं। इन्होंने एक जो है दो वर्ड्स में इसको डिफाइन किया था, लैंग कहा था एक, और एक कहा था पेरोल, ठीक है, लैंग और पेरोल। तो लैंग को उन्होंने क्या बोला था, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। लैंग को उन्होंने वर्ड्स नहीं बोला है, लैंग को क्या बोला उन्होंने, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। कोई भी जो भाषा होती है उसकी जो अपनी पूरी की पूरी एक क्या होती है, एक तंत्र होता है उसका, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज बोला है। और परोल को क्या बोला उन्होंने, अटरेंस। 50 बार ये क्वेश्चन आपके नेट में आ चुका है। तो लैंग और परोल, तो बेसिकली परोल जो हो गया अटरेंस, वो साउंड हो गया, इससे रिलेट कर दो। और जो लैंग है बेसिकली सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है, इससे रिलेट नहीं कर सकते इसको, क्योंकि साइन का मतलब तो बेसिकली कोई भी एक सिंपल सा वो हो गया ना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि पहले क्या आया, तो पहले साउंड आई, फिर उसके बाद क्या आया, साइन आया। साउंड और साइन के मिलने से क्या बना, कोई भी लैंग्वेज बनी, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज का बेसिक फंक्शन क्या था, व्हाट वाज द बेसिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, टू, बताओ, टू कम्युनिकेट द कॉम्प्लेक्स इमोशंस, ठीक है। टू कम्युनिकेट द कॉम्प्लेक्स इमोशन, अपने इमोशंस, कॉम्प्लेक्स इमोशंस को कम्युनिकेट करना क्या था, लैंग्वेज का फंक्शन था। ध्यान से देखना आप यहाँ पर, टू कम्युनिकेट द कॉम्प्लेक्स इमोशंस का मतलब क्या है, कि बेसिकली communicate the complex emotions. What do you mean by the word communicate? So if you look at this word communicate, actually communicate का मतलब होता है to convey the exact meaning or to convey the exact effect on the receiver. देखो ध्यान से समझना, जैसे अगर मैं कहता हूँ प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर मैंने किसी से कहा, मैं स्पीकर हूँ, रिसीवर है कोई दूसरा मेरे सामने बैठा हुआ है, मैंने कहा प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने अपने सर को नॉड किया, तो बताओ कम्युनिकेशन हो गया या नहीं हुआ, जल्दी से आंसर करो। दूसरे बच्चे ने, मैंने किसी स्टूडेंट से कहा फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और उसने अपने सर को नॉड किया, ऐसे हिलाया, तो एक्चुअल में कम्युनिकेशन टेक्निकली जो है ये कम्युनिकेशन नहीं, देखो ये कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो जो स्टूडेंट है उसने अपने सर को खाली नॉड किया, एक्नॉलेज किया है, बट वो कम्युनिकेशन पूरा कब होता है, जब वो इफेक्ट क्रिएट होता है उस पर, यानी कि वो जाता, एक ग्लास ऑफ वाटर लेकर आता और मुझे देता, तो वो कम्युनिकेशन तब पूरा माना जाता है। तो फॉर अ कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव, इट शुड नीड, इट शुड हैव अ डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसीवर। जैसा मैंने इफेक्ट उसको चाहा था वैसा नहीं हुआ इसके ऊपर, उसने खाली सर हिलाया है, ठीक है। तो यानी कि डिजायर्ड इफेक्ट, ये लिख लेना कॉपी में, जब डिजायर्ड इफेक्ट होता है रिसीवर पे, तब हम उस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं भाई, कंप्लीट कहते हैं, ठीक है। उसमें भी फिर एक और चीज आ जाती है, फीडबैक। तो फीडबैक का वो देगा तो फिर वो और कंप्लीट हो जाएगा, बट फिर भी यहाँ तक का आप इसको देखेंगे। तो अब लैंग्वेज का बेसिक पर्पस क्या था, टू कम्युनिकेट द कॉम्प्लेक्स इमोशंस, ठीक है। अब इसी में एक फंक्शन आता है लैंग्वेज का, डिस्प्लेसमेंट, क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टू कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट पास्ट एंड प्रेजेंट, टू कम्युनिकेट पास्ट एंड प्रेजेंट, सॉरी पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर इन प्रेजेंट कम्युनिकेशन, या इन प्रेजेंट टाइम कम्युनिकेशन। जैसे आप और हम अभी बात कर रहे हैं, हम बात करते करते अगर हम पास्ट की कोई बात को कम्युनिकेट कर दें आपसे, या फिर प्रेजेंट की कोई बात को कम्युनिकेट कर दें, तो उसको हम कम्युनिकेशन के डिस्प्लेसमेंट फीचर में काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि जल्दी से बताओ कि एनिमल कम्युनिकेशन में पॉसिबल होगा क्या डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए कोई हमारा पेट डॉग है या कैट है, क्या वो हमें कभी भी अपने अभी प्रेजेंट टाइम में क्या वो पास्ट या फ्यूचर का कम्युनिकेट कर सकती है, या कर सकता है, नहीं कर सकता ना।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है हमेशा, डिस्प्लेसमेंट इज अ कम्युनिकेशन विच एक्चुअली कैन ओनली बी डन बाय द ह्यूमंस, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड, जिसे मैंने क्या कहा, एनिमल्स। तो एनिमल्स और ह्यूमंस में जो है यही डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन आ गया लैंग्वेज का, ठीक है। तो लैंग्वेज के फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है कि ये वाला जो ग्राफ मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जिसमें कि मैं अब बात करूंगा जो 6 लेयर्स ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। तो लैंग्वेज आपको क्लियर हो गया बेसिकली कि 6 जो लैंग्वेज क्या है, सिस्टम ऑफ साउंड्स, वर्ड्स एंड पैटर्न्स है विच इज यूज्ड बाय ह्यूमंस टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। लैंग्वेज में साउंड और साइन आता है बनके, फिर साउंड में मैंने आपको बताया कि जो है बेसिकली साउंड के लिए हम फिनीम वर्ड यूज करते हैं, और जिसमें कि 2 तरीके की फिनीम्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स और वोवल साउंड्स। फिर मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिए थे, ये सब चीजें थी, मॉर्फीम का भी एक जिक्र हुआ। ये वाला जो चार्ट मैंने आपको ग्रुप में भी भेजा है बना के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम फिनिटिक्स पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को भी मैंने बता दिया। फिनिटिक्स, आइए, फिनिटिक्स बेसिकली मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिनिटिक्स, एग्जाम के हिसाब से भी। ये पूरा का पूरा फिनिटिक्स बताने से पहले चलिए मैं आपको एक लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन जल्दी से लिखवा देता हूँ, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स के अंदर ये सब चीजें आएंगी, जितने 6 लेयर्स ऑफ लैंग्वेज हैं ये लिंग्विस्टिक्स में आएगा। तो लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स, व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। एमए में ऑप्शनल होता है एक आप लोगों का, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड एज लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। सो अब अगर हम फिनेटिक्स के बारे में आए, फिनेटिक्स, तो फिनेटिक्स क्या है बेसिकली, फिनेटिक्स है आपका स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पीच साउंड, स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पीच साउंड्स, ठीक है, स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पीच साउंड chiefly used in spoken utterance, chief speech sound is chiefly used in spoken utterance, ठीक है। जो स्पोकन अटरेंस हम करते हैं उसमें जो बेसिकली हम जो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, अटरेंस, अटरेंस इज द एक्ट ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। तो स्पोकन अटरेंस में जो हम साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पीच साउंड, जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ तो बहुत सारे मेरे जो क्या कहते हैं आर्टिकुलेटर्स, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, आर्टिकुलेटर्स वो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं हमारे, स्पेशली जो साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उन आर्टिकुलेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी जब स्टडी करते हैं कि हमारा जैसे लिप्स हैं तो लिप्स से कैसी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, टीथ से कैसी हो रही है, जो हमारे टंग है वो कैसे प्रोड्यूस कर रहा है साउंड को, तो उसकी जब पूरी डिटेल स्टडी होती है तो उसको फिनेटिक्स कहते हैं गाइस। तो फिनेटिक्स के बेसिकली अगर ब्रॉडली स्पीकिंग इसके 3, इसको ट्रिपल ए कहते हैं, ए क्यूब, ए 3 तरीके के इसके जो है हम सब पार्ट्स निकाल सकते हैं फिनेटिक्स के, ठीक है। तो एक है आर्टिकुलेटरी फिनेटिक्स, आज मैं खाली ओवरव्यूज दे रहा हूँ, आर्टिकुलेटरी, एक एकूस्टिक फिनेटिक्स, और एक होता है ऑडिटरी फिनेटिक्स, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिकुलेटरी में हम क्या पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ साउंड, साउंड्स को ओरिजिन कैसे करते हैं, कहाँ से होता है, ठीक है, जैसे हम उसके बात करेंगे। और एकूस्टिक्स में जो है साउंड, साउंड ट्रांसमिशन कैसे होता है, साउंड ट्रांसमिट कैसे होती है, उसको एकूस्टिक प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं हम, ठीक है। फिनेटिक्स के 3 कोर ग्रुप हैं ये। और ऑडिटरी में हम साउंड को रिसीव कैसे करते हैं, जैसे आपने कोई साउंड प्रोड्यूस करी तो वो मेरे ईयर्स में हम उसको कैसे, वहाँ ईयर्स में प्रोड्यूस होके फिर वो माइंड में कहाँ किस पार्ट में जाता है, माइंड के, माइंड फिर उसको कैसे एक्सेस करता है और फिर कैसे हम उसका कुछ सेंस निकालते हैं। सो ऑडिटरी फिनेटिक्स इज रिलेटेड टू द रिसीविंग ऑफ साउंड्स,
राइट। तो ये आपके जो है फिनेटिक्स के 3 सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इसके जैसे कुछ पार्ट्स हैं जिसको कि हम लोग देख सकते हैं। मैं डायग्राम शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, बड़ा इंटरेस्टिंग से डायग्राम्स होते हैं। लिंग्विस्टिक्स का एक छोटा सा पार्ट ही समझ लीजिए आप इसको ना। तो ये डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डायग्राम अगर आप देखोगे, 2 मिनट के लिए हम डायग्राम यहाँ पर भी चलाते हैं। तो ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो आप देखोगे कि बेटा इसमें 44 टाइप्स फिनेटिक्स में एक्चुअली जो साउंड्स की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है जैसे हम देखते हैं बाइलेबियल है, तो बाइलेबियल यहाँ पर मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे बाइलेबियल है ये, तो लोअर लिप हो गया, ठीक है। लेबियोडेंटल, लेबियोडेंटल में आप सेकंड, तो लेबियोडेंटल आप यहाँ देख रहे हो ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ। तो बिटवीन लिप्स एंड टीथ, फिर डेंटल एंड इंटरडेंटल, तो आप देख रहे हो 3 डेंटल एंड इंटरडेंटल, यहाँ दांत आ गए इसमें, इसके बीच में। फिर एल्वियोलर, ठीक है, आप मार्क करो एल्वियोलर। साउंड्स भी इनके हमें क्लासिफिकेशन देखते हैं हम, एल्वियोला बोलते हैं हम इसको। तो टंग टचिंग द पार्ट ऑफ योर माउथ, तो ये टंग से रिलेटेड है। एल्वियोलर में आप लिख सकते हो रिलेटेड टू आवर टंग, ठीक है। तो पोस्ट एल्वियोलर है, फिर रेट्रोफ्लेक्स है, रेट्रोफ्लेक्स। सो रेट्रोफ्लेक्स मींस टर्निंग बैकवर्ड्स, टर्निंग बैकवर्ड्स। तो आप देख रहे हो, समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके के जो वर्ड्स हैं। अब जैसे आपको क्या करना है, आज एक्टिविटी दे रहा हूँ आज, मेरे ख्याल से सभी बच्चे करेंगे, स्पेशली तनुजा बोरा और निवेदिता सिजवाली को दे दिया मैंने। इनके जितने भी आपको एग्जाम्पल्स हैं, आपको साउंड्स को लिख के लाना है। जैसे बाइलेबियल, अगर हम बोले प का साउंड है तो वो कौन सी साउंड है, ठीक है। ट का साउंड है या टी का साउंड है तो वो कौन सी साउंड है, ड का साउंड है वो कौन सी साउंड है। तो वो इनकी जो साउंड्स की क्लासिफिकेशन है, इनके मीनिंग, जैसे वेलर, यूबोलर, इनको देखकर इनका एक चार्ट आपको इजीली आपको गूगल करके मिल जाएगा, वो आपको लाना है। आपके नेट में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर नेजल एक्टिविटी है, ठीक है, हार्ड पैलेट है इसके ऊपर, हमारे टीथ के जस्ट ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे हो कि बैक, सेंटर, फ्रंट, ब्लेड, ये टंग हो गया हमारा पूरा। एपिग्लॉटिस, मेन पॉइंट है ये एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस से हमारी साउंड्स प्रोड्यूस होती है। फेरिंग्स, दिस इज द आल्सो अ वेरी क्रूशियल point where sound is produced, from where the sound is produced, ठीक है। एपिग्लॉटिस, ये जो छोटा सा गैप है इसको कहते हैं फेरिंग्स, ये पीछे का पूरा बैक पोर्शन जो है इसका, ठीक है। रूट, ये रूट है। तो ये आपको कैसा लगा, इंटरेस्टिंग है कि नहीं। देखा ना सबने, तो पूरा लिंग्विस्टिक्स का एक एस्पेक्ट निकल कर आ रहा है इसमें। तो आपको साउंड्स का एक जो चार्ट है वो पूरा बनाना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। अब मैं आपको, जैसे फिनेटिक्स के बाद एक एस्पेक्ट आता है फोनोलॉजी। देखो, फोनोलॉजी और फिनेटिक्स में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले फोनोलॉजी होता क्या है। फोनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ साउंड्स है, नोट करेंगे। व्हाट इज फोनोलॉजी, स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ साउंड्स। एंड स्पेशली डिफरेंट पैटर्न्स इन डिफरेंट, हम कह सकते हैं डिफरेंट पैटर्न्स of sounds in different languages, different patterns of sounds in different languages.
ठीक है, आ रहा है समझ में? जैसे हम फोनोलॉजी के भी दो पार्ट करते हैं, फोनोलॉजी के भी दो पार्ट करते हैं हम। एक होता है सेगमेंटल फोनोलॉजी और एक होता है सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी। नोट कर लेंगे यहाँ पर, फोनोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेगमेंटल फोनोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम अगेन उसकी साउंड्स के पैटर्न्स को पढ़ते हैं, फोनोलॉजी, PHONOLOGY। और एक क्या बोला मैंने, सुप्रा सेगमेंटल। पूरी क्लास ध्यान से देखिएगी यहाँ पर, सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी क्या होता है भाई? सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी होता है आपका, जैसे जिसमें आप जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स उनको कैसे अटर करते हैं, उनको अटर करने का आपका तरीका क्या है। जैसे इस बार के नेट में आया था ना क्वेश्चन, रिट्रिक्स एंड प्रोसिडी, प्रोसिडी पूछा था ना, तो प्रोसिडी आ जाता है पूरा इसमें, जैसे स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम, ये सारे जो एलिमेंट हैं, हाउ टू अटर द साउंड्स, ठीक है, उसका जो तरीका है साउंड को अटर करने का, हम स्ट्रेस कहाँ रख रहे हैं, इंटोनेशन क्या है, इंटोनेशन, रिदम, ये सारी चीजें जो है आपके किस में आ जाती हैं, फोनोलॉजी में। तो फोनोलॉजी को याद करने का तरीका क्या है, पूरी क्लास मेरे साथ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूँ मैं, प्रोसोडी। सो प्रोसोडी बेसिकली क्या है आपका, फोनोलॉजी का ही एक सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी को ही प्रोसोडी कहते हैं। प्रोसोडी दो तरीके की चीजें को स्टडी करता है, या दो इसकी मीनिंग है। एक तो प्रोसोडी का मतलब होता है वर्सिफिकेशन, नोट कर लेंगे पूरे बच्चे। एक तो क्या होता है, स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन, जैसे जब कोई कवि जो है छंद अपने बनाता है ना, तो उसका जब अध्ययन करते हैं कि कवि ने छंद कैसे बनाए हैं, वर्सिफाई कैसे किया है, ब्लैंक वर्स किया है कि फ्री वर्स किया है, हीरोइक कपलेट किया है, उसके वर्स को जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसोडी। और प्रोसोडी का दूसरा मतलब क्या है, स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम। तो ये जो ग्रीन कलर से सर्कल किया, ये इसका दूसरा मतलब है, तीनों चीजें आ जाती हैं इसमें। और प्रोसोडी का पहला मतलब क्या है, स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन। क्लियर हो गया पूरी क्लास को? और प्रोसोडी और सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी एक ही है। देखो एक चीज दिखाता हूं, जैसे जैसे मान लो फिनेटिक्स और फोनोलॉजी के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा देख लो, फिनेटिक्स और फोनोलॉजी, ठीक है, तो कुछ भी तो नहीं है। फिनेटिक्स क्या है, आपकी इंडिविजुअल स्पीच साउंड्स है, इंडिविजुअल स्पीच साउंड्स, और खासकर उनके प्रोडक्शंस, इंडिविजुअल स्पीच साउंड्स एंड इट्स प्रोडक्शन। हाँ मैं बताता हूँ, इंडिविजुअल स्पीच साउंड्स एंड इट्स प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज फोनेटिक्स। और फोनोलॉजी क्या है, पैटर्न ऑफ साउंड्स है। तो पूरा साउंड्स के पैटर्न की जब हम स्टडी करेंगे तो दैट इज फोनोलॉजी। अब देखो ध्यान से देखना, जैसे ये देखो यहाँ पर ना, जैसे मैंने बताया सेगमेंटल फोनोलॉजी क्या है, सेगमेंटल फोनोलॉजी में जैसे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स आने लग जाते हैं। फिर सेगमेंटल फोनोलॉजी यहाँ बताया नहीं था मैंने, नोट कर लेंगे, सेगमेंटल फोनोलॉजी में वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स आने लग जाते हैं। अभी मैंने बताया था ना कि ये फिनीम ही होते हैं। फिनीम से एक्चुअली, फिनीम तो कोई भी एक साउंड की सबसे छोटी यूनिट होती है ना, बट अगर हम उसको जब और डिफाइन करते हैं तो हम उसको वॉल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स में डिफाइन जब कर लेते हैं तो वो सेगमेंटल फोनोलॉजी, सेगमेंट्स बना दिए ना हमने, समझ गई? जैसे मान लो मैंने कहा कि यहाँ पर देखना सारे बच्चे, जैसे मैंने कहा कि एक लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है, तो ये लाइन है मान लो। तो ये लाइन में जब ये लाइन में एक एक साउंड की स्टडी करेंगे, जैसे फिर ट, फिर थ, फिर ई, फिर एन, फिर ज, तो ये अलग अलग जब हम साउंड की स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा, फिनेटिक्स होगा। जब इसमें पूरे साउंड का पैटर्न स्टडी करेंगे, जैसे कि हम इसका मीटर निकाल देंगे, हम कहेंगे यार अच्छा ये याम्बिक पेंटामीटर जा रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका फोनोलॉजी हो गया। आ गया समझ में? और फिर फोनोलॉजी में भी जब मैं इसके पैटर्न ऑफ स्टडी को कैसे बोलता हूँ, जैसे कोई ऐसे बोल देगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर,
कोई ऐसे बोलेगा अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, तो द वे द लाइन इज अटर्ड, उसका स्ट्रेस कहाँ पड़ रहा है, इंटोनेशन कैसे चेंज हो रहा है, वो जब मैं करूंगा तो वो सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी हो जाएगा। आ गया समझ में? आगे बात करें तो हम इसमें बात करते हैं, जैसे तीसरा हमारा एलिमेंट आता है मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स, ठीक है, हमने जो आपको चार्ट भेजा है, चार्ट में आप तीसरा एलिमेंट मॉर्फोलॉजी में मॉर्फीम्स की बात कर रहे हैं। तो मॉर्फीम्स बेसिकली वर्ड्स का ही एक पार्ट है, या वर्ड्स ही होते हैं, बट इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस होता है। देखो मॉर्फीम्स को हम क्या कह सकते हैं ना, नोट कर लो, स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ अ स्पीच। स्पीच की जो सबसे छोटी ग्रामेटिकल यूनिट होती है, ग्रामेटिकल, मैंने मीनिंग बोल दिया था शायद, वहां मीनिंग को चेंज करके ग्रामेटिकल यूनिट कर देना ऑफ स्पीच। ठीक है, तो मॉर्फीम मैंने क्या कहा था, स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर। ग्रामर की सबसे छोटी यूनिट का स्टडी जब हम करते हैं तो उसको हम मॉर्फीम कहते हैं। सॉरी, मॉर्फोलॉजी कहते हैं उसको, जब हम स्टडी करते हैं तो उसको मॉर्फोलॉजी कह देते हैं। और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ग्रामर की, उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फीम कहते हैं। तो मॉर्फीम को हम क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर। नोट कर रहे होगे कॉपी में? ठीक है बेटा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो मॉर्फीम्स क्या होते हैं, जैसे इसका एक डायग्राम मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हमारे नेट में ना। अम, देखेंगे, जैसे अगर हम बात करें कि मॉर्फीम्स, ठीक है, तो मॉर्फीम्स की अगर हम बात करें तो मॉर्फीम्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फ्री मॉर्फीम और एक होता है बाउंड मॉर्फीम। तो बाउंड मॉर्फीम क्या होते हैं, वो मॉर्फीम जो किसी वर्ड के साथ मिलकर रूट्स बनाते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे एफिक्स, एफिक्स कहते हैं हम इसमें। बाउंड मॉर्फीम के भी दो पार्ट मैंने आपको डायग्राम जो भेजा है उसमें क्या है, एक तो एफिक्स है और एक रूट्स होते हैं ना, रूट्स, ROOT, ठीक है, एफिक्स और रूट। और फ्री मॉर्फीम के दो पार्ट होते हैं, ओपन क्लास, ओपन क्लास मतलब इंडिपेंडेंटली वर्ड्स होते हैं, जैसे नाउन हो गया, वर्ब हो गया और एडजेक्टिव हो गया। नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली अपना सेंस खुद भी दे सकते हैं ना। लेकिन एक होते हैं क्लोज्ड क्लास। क्लोज्ड क्लास मतलब आप इनको सेंटेंस में जब यूज करोगे तभी ये अपना सेंस देंगे। जैसे
कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस और डिटरमाइनर्स, ये क्या होते हैं? क्लोज्ड क्लास होते हैं। तो पक्का क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोज्ड क्लास मॉर्फीम्स जो है फ्री मॉर्फीम होते हैं कि बाउंड, और फिर वो उसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? तो जैसे कंजंक्शंस हो गए, कंजंक्शंस हो गए, प्रेपोजिशंस हो गए और डिटरमाइनर्स हो गए। कंजंक्शंस हो गए, प्रेपोजिशंस हो गए और क्या हो गए बेटा? डिटरमाइनर्स हो गए। ये किसके एग्जांपल्स होते हैं? क्लोज्ड मॉर्फीम के। डिटरमाइनर्स तो पता है ना सबको, जैसे जो वही होते हैं जो वही मानस वाला, मच, ऑल, नन, एनी, सम। ये समझ में आ रहा है आपको ओपन और क्लोज क्लास कैसे होते हैं? जैसे कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, ये अपने मीनिंग्स खुद से नहीं दे सकते ना। जैसे अगर आप बोलते हो कोई भी प्रेपोजिशन बोलो, आप इन बोलो, ऑन बोलो, तो इन ऑन का मतलब सेंस नहीं आएगा ना ओवरऑल। आपको बोलना पड़ेगा आई एम सिटिंग इन अ रूम। तो इन अपना वैसे तो इंडिपेंडेंट है वर्ड, लेकिन वो अपना ओवरऑल सेंस, कंटेक्चुअल सेंस कैसे देगा? किसी सेंटेंस में जुड़ के देगा, तो इसलिए उसको क्लोज्ड क्लास का है। लेकिन ओपन क्लास मतलब जो इंडिपेंडेंटली, जैसे आपने कहा कोई भी नाम लिया सौरभ, या वर्ब कहा आपने प्ले, ईट, तो ये अपना सेंस खुद भी दे रहे हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स भी इसी में आ जाएंगे। ठीक है। अब बाउंड मॉर्फीम में दो होते हैं, एफिक्स। एफिक्स के अंदर है इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल। तो इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल, इसको मैं आपको डिटेल में ये देखना पड़ेगा मुझे थोड़ा, एक और एग्जांपल में वहां पर वो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं है। बट इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल, ये फिलहाल आप इसके टाइप लिख लो। ठीक है, देखो बाउंड मॉर्फीम का मतलब समझ गए आप? बाउंड मॉर्फीम जैसे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे जैसे आपने कहा ना, ये इधर देखो ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा प्लेड, तो प्लेड में प्ले वर्ड क्या है आपका? इंडिपेंडेंटली भी एक चल सकता है ना ये। लेकिन ईडी, ये जो आपने सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लगाया, ये क्या है? इसका बाउंड मॉर्फीम है। बी बी एम लिख रहा हूँ मैं, बाउंड मॉर्फीम। और प्ले क्या है आपका? फ्री मॉर्फीम है, एफ एम। समझ गए? आ रहा है ना समझ में? तो जितने भी आपके एफिक्स मतलब क्या हो सकते हैं आपके, जैसे हम कह सकते हैं ना, उपसर्ग और प्रत्यय नहीं कहते हिंदी में, सफिक्स और प्रीफिक्स, वो सारे क्या हो जाते हैं आपके? बाउंड मॉर्फीम्स हो जाते हैं। ये मैं निहारिका आपको दे रहा हूँ, निहारिका रैकवाल और संजय चौहान सर, आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ सर। आप दोनों को ना इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल के बीच के डिफरेंस को बताना है पढ़ के ना। व्हाट इज द डिफरेंस? निहारिका रैकवाल और संजय चौहान सर, ठीक है? थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स और डेरिवेशनल मॉर्फीम्स के एग्जांपल्स, और उसके डिफरेंस को देखना है। मैं भी देखूंगा, मुझे पता तो है, बट ये टॉपिक फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं आपको ये बता रहा था कि मॉर्फीम्स आपको समझ में आया ना? जैसे मैंने कहा आपको अनईजीनेस, मैंने आपको एक वर्ड दिया। अब देखो ये डिफरेंस बिटवीन वर्ड और मॉर्फीम बता रहा हूँ, वर्ड और मॉर्फीम। ठीक है, तो अब ये एक वर्ड है ना अनईजीनेस, एक वर्ड है अपने आप में। आप कहोगे हाँ सर है, लेकिन अनईजीनेस में मॉर्फीम्स कितने हैं? हाउ मेनी मॉर्फीम्स इसमें है? ये जल्दी से काउंट करके बताओ बेटा, सारे बच्चे आंसर डालो। बिल्कुल, अब एग्जैक्टली आपके समझ में आ गया इसका मतलब। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अन हो गया एक, इजी हो गया एक, और एक हो गया नेस, तो 3 मॉर्फीम्स हो गए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि मॉर्फीम्स क्या है? ग्रामेटिकल यूनिट की सबसे छोटी एक यूनिट होती है ग्रामर की, उसको हम मॉर्फीम कहते हैं। चलो अब हमें निवेद, चलो जल्दी से बताओ, किसको कहा जाता है बेटा फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? और किसी को याद है क्लास में ऑनलाइन, जिसने एक बार पहले पढ़ा है मेरे से? एक अमेरिकन लिंग्विस्ट है 19 सेंचुरी का। चलिए, लिंडले मरे, नोट करेंगे, लिंडले मरे, फटाफट नोट करें। अमेरिकन ग्रामेरियन है ये, 18 सेंचुरी के हैं, सॉरी 18 सेंचुरी के हैं, 18 सेंचुरी अमेरिकन ग्रामेरियन है लिंडले मरे। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ अमेरिकन ग्रामर, सॉरी फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर।
ठीक है। अब देखो ग्रामर का एक नियम क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर? डेफिनेशन क्या है ग्रामर की? रूल्स ऑफ लैंग्वेज, रूल्स ऑफ लैंग्वेज फॉर फॉर्मिंग, rules of language for forming words together rules of language for forming words together in sentences is called grammar। ठीक है, तो ग्रामर की जो मिनिमम यूनिट है इज कॉल्ड ग्रामर। वो सेंटेंस है, वर्ड नहीं है, पहले भी बताइए ये बात, इज कॉल्ड ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर की जो मिनिमम यूनिट है, मिनिमम यूनिट ग्रामर की क्या है? वो सेंटेंस है। सेंटेंस जब होगा तभी ग्रामर का रूल लगेगा। ठीक है, सेंटेंस के कंटेक्स्ट में हम ग्रामर को देखते हैं जनरली। ठीक, तो मेरे ख्याल से आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज पढ़ ली, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, उसके फीचर्स को देख लिया, और इसके जो है फिनेटिक्स, फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी के एलिमेंट्स को थोड़ा सा चेक किया। उसके अलावा एक ग्रामर के एलिमेंट्स को बताया, और मॉर्फीम के दो पार्ट्स, फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम पे भी चर्चा रही। ठीक, तो मेरे ख्याल से आज का ये काफ़ी अच्छा एक पावर पैक्ड लेक्चर था। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? कुछ वर्थवाइल लगा? सीखने को मिला कुछ?